انسان کو ایسا ہونا چاہیے بڑا انکساری کے ساتھ. کیوں؟ جب آدمی اپنی زندگی کے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اپنی زندگی کو 30 سالہ 40 سالہ 50 سالہ 60 سال، کوئی 30 سال گزار چکا ہے، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، کشمیری میں ہم بولتے ہیں وہاں ددون کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہاں پہ کچھ بھی حاصل نہیں ہے. اس کی زندگی میں دیکھتا ہوں، آپ دیکھیں پیچھے مڑ کے، یا تو ہم نے حرام کھانے میں ہم نے کبھی آگے پیچھے نہیں دیکھا، چاہے بہن کا حق مارا، چاہے بھائی کا حق، چاہے باپ کا حق، چاہے پڑوسی کا حق، کسی کا بھی حق سب نے مارا ہے. کوئی یہ کہے میں ہوں، کوئی اللہ ماشاءاللہ ہو سکتا ہے کوئی، اکثر یہ ہے کہ ہم نے بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہیں. ہم نے اپنی نوکری میں کبھی اپنی نوکری کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ہم نے بزنس میں کبھی اپنے ترازو کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اب ہے کیا انسان کے پاس؟ بچوں کے لیے حلال حرام دیکھا ہی نہیں کبھی. میرے بچے کو یہ فیسلٹی چاہیے، مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے. پھر جب آدمی اس عمل کو پیچھے دیکھتا ہے، بولتا ہے یار وہ کچھ کی ہے مسئلہ، تو یہ جاتا ہے ہینڈس اپ کرتا ہے، اب میں آ گیا، ابھی اللہ کے در پہ جاتا ہے. لیکن ہم یہاں یہ کہتے ہیں بھائی دیکھیے، دو چیزیں ہیں انسان کے ساتھ وابستہ زندگی میں. ایک ہے حقوق اللہ کے حقوق، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب اللہ کے ہیں. آپ نہیں کرتے کوئی نہیں، مت کرے. اللہ چاہے گا آپ کو اللہ بچائے، عذاب دے گا، اللہ چاہے گا معاف کرے گا، وہ آپ کا اور اللہ کا واسطہ. لیکن آپ میرا حق کھا کے، میرا 100 روپے کھا کے آپ عمرے پہ جائیں گے، کیا عمرہ قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا، سوال ہی نہیں ہوئے. اس نے بہن کا حق کھایا، اس نے پڑوسی کا حق کھایا، اس کے ذمہ قرضہ ہے، زبردستی روکا ہوا ہے اور یہ عمرے پہ جا رہا، تو کیسے ہوگا بھائی؟ اس کو بولتے ہیں حقوق العباد. حقوق العباد میں جب آدمی دیکھتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی پہلے جو ہے اپنے حقوق العباد ادا کرو، پھر چلو آپ اپنی عبادت کے لیے. پہلے پریکٹیکلی کچھ تو صاف پاک یہاں سے بھی ہو کے جاؤ، پھر باقی جو رہی آپ کی زندگی، جو آپ نے اللہ کے قانون توڑے ہیں، نمازیں نہیں، وہ نہیں، یہ نہیں، اللہ سے جا کے لڑو، اللہ کا گریبان پکڑو، وہاں دامن پکڑو، خانے کعبہ کا گراف پکڑو، لٹک جاؤ، وہاں پہ حتیم پہ چلاؤ، چیخو، طواف کرتے چیخو. کوئی نہیں بولے گا، کوئی یہ نہیں بولے گا چکا چکریا کے دو، کوئی آپ کو نہیں بولے گا آپ زور سے کیوں پڑھ رہے ہو، کوئی پولیس والا نہیں، کوئی متوا نہیں. چلائے آپ، اللہ کا معاملہ ہے، آپ کا معاملہ ہے، آپ چیخیں چلائے، معاف کرائے آپ. تو اس لیے یہ سفر جو ہے، اس سفر میں ہم جب جاتے ہیں تو ہم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جاتے ہیں. تلبیہ جو ہم پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اگر آپ مانوی لیں گے، لفظی ترجمہ کہ مان لیے اللہ، میں نے اب ہینڈس اپ کیا 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد میں نے ہاتھ اوپر کر لیے، کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، میں آ گیا. یہ ملک، یہ دولت، یہ جہاں، یہ سارا یہ آپ کا ہے، کوئی آپ کا شریک نہیں ہے، میں آ گیا. تو میں آ گیا ہوں کیا ہے؟ میں لے کر آ گیا ہوں اپنے گناہوں کی گٹھری، اب اللہ کے سامنے ڈال دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ اس انسان کو گناہ جو کرا وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس کو اپنی ماں نے جنا ہو. ولدت امہ، یا الفاظ حدیث کے کہ اس کو اپنی ماں نے ابھی جنا ہے، اپنی ماں نے جنا ہے، یعنی ایک مشرق کوئی گناہ، اس کے پلے کوئی گناہ رہا ہی نہیں، ابھی معاف ہو گئے، سارے ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے ہم لوگ یہ سفر جو کر رہے ہیں، یہ سفر اسی نیت سے ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے اور ہمارا ایمان مکمل ہو جائے. کیوں ہمارا ایمان مکمل ہے کیا؟ نہیں، بالکل مکمل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، صحابی باغے جا رہا تھا، رستے میں ایک صحابی بولا یہ چکو دورہ، چھوڑے کو بے ایمان، نعوذ باللہ، اور وہ بھی بھاگا اس کے ساتھ، چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں. کیوں؟ یار جو کیفیت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھی، وہ باہر جا کے بازار میں وہ کیفیت نہیں رہی. سنا روز نہ ایسے کہ ایسے ایمان ہی چھن کے رستے میں ملا ہے فلانے چکو دورہ، اے یار میں نعوذ باللہ چھوڑے کو بے ایمان، کس کو یہ کیفیت تم میں سے یار بچے جی ہے کیفیت، سب گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، اگر صحابہ تمہاری ایمان کی سوئی ایک اس پہ رہے جو آپ کی اس مجلس میں ہوتی ہے، پھر تو آپ فرشتے بن جاؤ.
फिर कहाँ इंसान बशर कहाँ रहेगा। और इंसान जो है इंसान मुरक्कबुन मिनल खताई वल निस्यान, तो बना ही है भूल से, गलती से। मैंने इसको गलती करनी ही करनी है। अगर इंसान ने गलती नहीं की तो ये तो फरिश्ता हो गया, फरिश्ते तो है ही नहीं हम। इसलिए हमको जो है गलतियां होनी है और इन्हीं गलतियों की माफी तलाफी करने हम जा रहे हैं। कहाँ पे? अल्लाह के पास और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई ये जब आप सफर करो तो इसमें पहले अपने अमाल को यहाँ देखो, टटोल मैंने किसी का दबाया तो नहीं है। कोशिश ये करनी है कि भाई ये सारा माफ हो जाए, उससे माफी तलाफी करें, उसके पास बैठ नाराज मशगूल का। हम ये कहते हैं इसके ऊपर ज्यादा जोर होना चाहिए, ज्यादा जोर से कटपट। हमें मैं आपको बताऊं बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए हैं कि आदमी हर साल जाता है उम्रे के लिए। हमारे पास एक दफा सोपुर का आया, हम ऊपर ऑफिस में थे उस वक्त, गुजरात में आगे माशाल्लाह अच्छा खासा गाड़ी वाला आगे आदमी सफेदारी करके आपको तख्तरी का मैंने बोला क्यों अल्लाह ने फर्ज करार दिया है। तुम्हारे महल्ले में कितनी लड़कियां जो बिन ब्याही हैं, आपने कभी ये देखा है? जैसे अपने अपने रिश्ते में देखा है, कोई मुस्तैद तो नहीं है तुम्हारे 1 लाख रुपए का, तुमको जो फराइज अदा करने जाए। अब मैं टूर ऑपरेटर, मैं यहाँ बेचने के लिए बैठा हूँ, अपना कारोबार कर रहे, मेरे लिए तो कारोबार है, मैं कारोबार करने के लिए बैठा, उसको जबरदस्त बातें लगी। वो निकल गया, दूसरे दिन फिर आ गया, सोपोर से बारामूला से आया वो डॉक्टर साहब है, बोला मुझे बड़ी बात आपके लगी यार, मैं तो ऐसा ऐसा हूँ। तो फिर मैंने उसको खुद समझाया, मैंने कहा देखिए आपको कोई ऐसा नहीं बोलेगा, लेकिन हमने ये देखना है हमारे ऊपर फराइज है, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं महल्ले की। देखिए आपके घर की जिम्मेदारी, आपके पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की जिम्मेदारी है। क्या अम्मा जी खुदा से मोहताज किन चीज़ की, उन्हें वो चीज़ें भी देखनी है। मुआशरा बनता कैसे है, मुआशरा नीट एंड क्लीन होगा कैसे, आपके मुआशरे में कोई मोहताज न रहे, वो हमारी जिम्मेदारी है। आपके घर में, आपके रिश्ते में, फिर महल्ले में, फिर शहर में, फिर मुल्कों का निज़ाम बनता है। इस तरह ये सारे निज़ाम बनते हैं, लेकिन हम अपने को देखें खाली, मैं नहीं चाहता। मैं मेरी सोच ये है कि भाई बगस उम्रास की मेरा सारा परिवार फिट हो। हाँ कि कोई मोहताज हो वो तुली सो हमें ये चीज़ें देखनी है कि मैं मोहताज मशकी या मैंने किसी का हक तो नहीं लिया है, कर्जा तो नहीं लिया, वो अदा करके फिर हमने उम्रे के लिए निकलना चाहिए। उम्रे में कुछ चीज़ें हैं, ये तो मैंने आपको तमीज़ बता दिया आदमी को कैसा होना चाहिए। ये हमारा ये इस्लाम है। इस्लाम इस वक्त नहीं कहता कि आप ऐसे रहो। इस्लाम तो मेरी डिग्री जब से आप पैदा हुए तब से इस्लाम ने कहा है कि एक्चुअली रोज़ हमने ऐसा चलना है, हमने ये चीज़ें देखनी है। ऐसा नहीं कि आप उम्रे के लिए निकले, अब आप पहले निकलोगे दावत तबलीग करने के लिए कि ये तो आपके ऊपर जिम्मेदारी दाइमन है, हमेशा है। आप वहां से आओगे तब भी जिम्मेदारी है, अब भी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी पहले से आपके ऊपर थी। सो हमने इन चीज़ों को लेके चलना है। अब इंसान उम्रे के लिए निकलेगा। उम्रे के लिए हम लोग तरतीब ये देते हैं कि भाई आपने आपकी फ्लाइट देखनी है। जैसे कि हम ये देख रहे हैं 27 को जो लोग निकल रहे हैं, इसका शेड्यूल ये होता है, अगर आपकी लोकल फ्लाइट है आपने कम से कम ये 2 घंटा लेके, हम कहते हैं 2.5 घंटा पहले पहुंचो। अच्छा ठीक, 2.5 घंटा पहले आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे, आपके साथ एहराम आपके हाथ में होगा, लगेज में आपकी चीजें होंगी, ये तो होगी इंतजामी होंगे। पहले हम ये कहेंगे कि आपने क्या करने जाना है और वो अदा कैसे करना है। उम्रा किस चीज का नाम है? उम्रा है 4 चीजों का नाम। कितनी चीजों का नाम? 4 चीजों का। मोटन अल्फाज में तफसील उन्होंने ज्यादा 4 चीजों का नाम उम्रा है। एक हो गया ये एहराम। क्या हो गया? एहराम। मर्दों के लिए 2 चादरें सफेद, औरतों के लिए इनका लिबास। इनका एहराम ये हो गया। मर्द हजरात का एहराम हो गया ये 2 चादरें, ठीक हो गया। इसके नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए, अंडरवेयर अंडरशर्ट कुछ नहीं, खाली ये 2 चादरें। एक चीज। दूसरा, खाने काबे का तवाफ 7 चक्कर। दूसरा क्या हो गया? खाने काबे का तवाफ 7 चक्कर कर खाने का। बस हजर अस्वद से लेकर हजर अस्वद तक एक तवाफ, वो मैं अभी समझा दूंगा। तीसरा हो गया सफा मरवा। सफा से मरवा तक 8 चक्कर, मरवा से सफा तक दूसरा चक्कर। कितनी चीजें हो गई? 3। चौथा हो गया
हलक करना, क्या करना, हलक करना, बाल कटाना। मर्द हजरात को सारा कटाना है और औरतों को एक पोलवे के बराबर। ठीक हो गया? पूरे बाल पकड़ के फिर लास्ट में एक और दूसरे को काट सकती है। मर्द अपनी मिसेस का काट सकता है, बहन भाई का काट सकता है, समझ गए? तो इन 4 चीजों का नाम उम्रा है। इन 4 चीजों का नाम। कुछ लोग इसमें दिल्ली में रात भर हैं, 27 को जो जा रहे हैं। कुछ लोगों की डायरेक्ट फ्लाइट है, फिर इंडिगो जो 29 है या फर्स्ट है, तो उनको क्या करना है, उनका निजाम स्टार्ट हो जाता है। मैं समझाता हूँ। जो मेरे साथ हैं वो तो रात भर मेरे साथ दिल्ली में है, दिल्ली से मैं उनको चलाऊंगा आगे, तो करा सब कुछ चलता रहेगा इंशाल्लाह। आपने यहाँ से जाना है, एक आपके साथ हैंड लगेज होगा, या फिर इसको नाम से 7 किलो अलाउड, इंसान 7 किलो अलाउड होता है उसमें हैंड लगेज। एक होता है लगेज 15 किलो, 15 केजी, 20 केजी भी होगा, चलेगा। यहाँ से तो ज्यादा होता भी नहीं है लोगों के पास। कोशिश ये करनी है कि आपके पास सामान कम हो, यहाँ से आपके 2-4 जोड़े कपड़े हो, 3-4 जोड़े कपड़े हो, एक हल्का सा शॉल हो या एक बिनान हो, हल्की सी। बुजुर्ग लोग हो थोड़ा सा मोटी चादर भी रख सकते हैं, ज्यादा मोटी भी नहीं, क्योंकि मदीना तैयबा में सवेरे सर्दी होती है, जब तहज्जुद के लिए निकलते हैं उस वक्त वो ओढ़ सकते हैं। इसी तरह मस्तूरात का भी मामला है। ये सारी चीजें आपके लगेज में होंगी, जो फ्लाइट वाला ले लेगा, यहाँ से ही आपको फिर जिद्दा में मिलेगा। अब अगर आपके साथ कुछ दवाइयाँ हैं, आप दवाई खाते हैं, आदमी दिन में 2 टैबलेट खाता है या 3 टैबलेट खाता है, अगर 30 दिन के लिए जा रहा है तो 3 या कितने हो गए, 90 टैबलेट इसको हो गई, अगर दिन में 3 मरतबा खाता है। तो मैं कहता हूँ इसको 100-125 टैबलेट लेनी चाहिए साथ में। सारा हैंड लगेज में रखो, प्रिस्क्रिप्शन साथ में रखो। कुछ दवाइयाँ 1-2 दिन की हैंड लगेज में रखो, आपका छोटा बैग है आपके साथ। अगर अल्लाह बचाए कोई आदमी किसी मर्ज में मुब्तला है, जैसे होते हैं, शुगर है, ये है, हाइपर है, या अल्लाह बचाए जो सर की बीमारी, माइग्रेन की प्रॉब्लम है किसी को, अचानक गिरना, तो उसको हम कहते हैं कि भाई अपनी फाइल साथ में रखो, जो प्रिस्क्रिप्शन हो उसके ऊपर लिखा हुआ हो, किसी अल्लाह ताला बचाए कहीं गिर गया, जेब में कागज साथ में होना चाहिए, ताकि आदमी निकाल के देखे फौरन, फटाफट डॉक्टर भी इसका इलाज कर सके फौरन की चिका दे। तो इसलिए हम ये चीजें बीमारों को साथ में रखनी चाहिए, चाहे औरत हो चाहे मर्द। ऐनक आप पहनते हैं, मैं कहता हूँ 2 ऐनक साथ में रखो। आप कहीं तो सुई वुजू करते करते भूल गया, बल्दिया वाले सफाई वाले उठा के फेंक दिया, वो कहाँ आपके चश्मे का ये करेंगे, अनाउंसमेंट करेंगे। तो इसलिए अगर एक है दूसरा साथ में है तो परेशान नहीं होगा, समझिए। तो इस तरह आप जो है इंशाल्लाह दिल्ली से एहराम बांधेंगे, इंडिगो वाले दिल्ली से एहराम बांधेंगे। दिल्ली से आपने एहराम बांधा, एहराम बांधते वक्त ख्याल रखना एहराम कैसे बांधना, वो मैं आपको एक चादर दिखा दूंगा अभी। तो एहराम बांधा आपने, उससे आप मुहरिम नहीं हुए, वो तो आपने लिबास चेंज किया। तो क्या करना है, वहाँ पे अगर आपको टाइम मिलता है, दिल्ली में जो मस्जिद है, छोटा सा कमरा है वहाँ पे आपने एहराम बांधा, 2 रकात नमाज पढ़ ली और दुआ मांगी अल्लाह से। लेकिन फिर जब आप जहाज में बैठोगे, जहाज कम से कम 3.5 से 4 घंटा चलेगा, उसके बाद एहराम मीकात आएगा। मीकात आएगा जिद्दा के करीब, उसके बाद आधा घंटा हवा में रहेगा, जहाज उतर जाता है, उसके बाद लैंड कर जाता है। तो यलमलम आता है, यलमलम जो हमारा मीकात है उसका नाम क्या है, यलमलम, हिंदुस्तान वालों का। तो वहां पे आप टूर ऑपरेटर आपको बोलता है भाई नियत कर, बस नहीं नियत है, क्या नियत करो। नियत तो ये है कि आपने ये सोचना है कि भाई मैं उम्रा करने जा रहा हूँ, ये तो ये होगी। लेकिन हम कहते हैं वन्यू ज़बोइन वन्यू, तो क्या नियत है, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। नमाज कैसे याद, अगर याद हो बेहतर है, नहीं याद होगी कशीर पर ए अल्लाह बुछुस उम्रहिच नियत करान, बुछुस उम्रहिच ये कर मैंने खतर सहल त आसान बेकर। उसके बाद तलबिया आपने पढ़ना है जोर से, औरतों को आहिस्ता से कम 3 मरतबा उस वक्त पढ़ना है जोर से। तलबिया क्या है, तलबिया लब्बैक का है, लब्बैक का हर एक आदमी को याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीवी के बदले शोर पड़ेगा, शोर के बदले बीवी, नहीं, ये नहीं चले।
ہمارے گروپوں میں تو بالکل یہ چلتا نہیں. میں تو امتحان کرتا ہوں. آپ نے ابھی سے تلبیہ یاد کرنا ہے. تلبیہ سب کو یاد ہونا چاہیے. تلبیہ کیسے یاد آ سکتا پوچھا جائے گا وہاں پر. اس میں شرم نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علم حاصل کرنے میں کوئی شرم. اطلب العلم من المہدی الی اللحد. ماں کی گود سے لے کر قبر تک سیکھنا ہے. ضروری نہیں ہے ہمیں آتا ہے. آپ کو زیادہ آتا ہوگا, آپ مجھے بتائیں. میں غلط ہوں, آپ مجھے بتائیں. آپ غلط ہیں, میں بتاؤں گا. اس میں شرم کرنے کی کوئی بات ہی نہیں. اسلام نے ہمیں